Hmm. I hope I am audible and you are able to see the PPT on the screen. इसको zoom कर लेते हैं. Okay, so we have studied the meaning of tax, the difference between direct tax and indirect tax, and what is income we have already seen, and heads of income, that is income from salary, income from house property, capital gain, profits and gains of business or profession, and income from other sources. We went through the definition of Income Tax Act 1961, Section 1 of Income Tax Act 1961. The Act introduces as the Act may be called as the Income Tax Act 1961, and it extends to whole of India, and it came into effect from 1st day of April 1962. We also saw the definition of India, that includes territory of India, territorial waters, seabed, subsoil, continental shelf, exclusive economic zone, maritime zone, airspace, correct? All these are part of India. Okay, we also saw the difference between inclusive definition and exclusive definition, exhaustive definition, that is also called exclusive definition. We have studied the meaning of assessee. Assessee includes person who is liable to pay taxes, who is liable to pay fines and penalty, and who is liable to pay taxes on behalf of other person. All these are assessees. So assessee plus assessee in default. Okay. Okay. Now we will start with the second definition, that is assessment under section 2 subsection 8. Assessment includes reassessment. As we have already seen, this is a type of inclusive definition because it adds the word includes. It is just specifying that assessment and reassessment one in the same. But by this definition, you won't be able to clear your doubt what is assessment is all about. Okay, so to look at this definition clearly, you should have the general definition or general meaning of the term assessment, because definition is itself not perfect. We have already seen inclusive definition just give the example of the part, the content, but not the full definition of the term. So to learn this definition, we will have to take the general meaning of it. Okay. So assessment is a process of determining the correctness of income declared by assessee and calculating the amount of tax payable by him, and further procedure of imposing that tax liability on that person. So what you are going to do in assessment? Assessment means you are assessing someone's income. Okay, it's a process. When you talk about assessment, it's a process. Determining means you are calculating, you are identifying the correctness of income. You are looking at the income return filed by the assessee, whether it is correct or not by the assessee, and calculating the amount of tax payable by him, and further procedure of imposing that tax liability on that person. So you are seeing whether the income which is declared by the assessee is correct or not, whether the tax which is the tax amount which is calculated is correct or not, or the tax liability is correct or not. So what you are going to do in this, what is my income and tax will be determined here. We are going to file the ITR, that is income tax return, then verification by IT. These all things are called assessment. So assessment में कुछ नहीं होगा, assessment में आपका income पता चलेगा. It's a process of calculating your income. It's a process of determining your tax liability. Correct? These all process is called assessment. ठीक है? So I hope यहाँ पे कोई doubt नहीं होगा. तो ये पूरे process को आप assessment ही बोलते हैं. ठीक है? Now this is very 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 important. इसके ऊपर हम लोग कुछ question भी देखेंगे practically. Examples भी इसके ऊपर देखने वाले हैं. But now we are going to learn the definition, so I won't be including any questions here. But later on, after this chapter, maybe I will be giving you questions to identify whether the person is belonging to which category. Okay, person includes
Now quickly tell me which type of definition it is. फटाफट. Inclusive. Inclusive. Inclusive, sir. Very good, very good, very good, very good. Person includes, it says, means this definition is inclusive. This definition will have certain examples of it. That means person includes an individual, an HUF, a company, a firm, an association of person or body of individual, a local authority, every artificial and juridical person who is not included in any of the above mentioned category. Now we will see this one by one. That is an individual. Individual का meaning क्या होता है? Individual में आप आएंगे एक natural person. Natural person जैसे मैं हूँ, ठीक है? Mr. Mohammad Jabir, an assistant professor. Miss Shruti Gupta, student of Srinaran Guru College. Mr. Mr. Modi, Prime Minister. ठीक है, like that. This is the category of an individual. ठीक है, जहाँ पे आप किसी भी बंदे को रखते हैं, जो एक बंदा जो होता है वो ग्रुप में नहीं आएगा, सिंगल पर्सन होना चाहिए. ठीक है, मिस्टर XYZ जो है अपना पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. ठीक है, मिस्टर A माइनर. ये सब जो कैटेगरी है वो किसकी है? ये मिस्टर और मिसेस और मिस की जो कैटेगरी है वो किस में आती है? आपके एन इंडिविजुअल में आती है. लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस टर्म. इसमें एक नेचुरल पर्सन आएगा. ठीक है, सो नेचुरल पर्सन मतलब मिस्टर, मिसेस और किसी का नाम अगर वहां पे होगा, जो भी है आप किसी भी नाम से आप बोल सकते हैं. अनीश कुमार इज एन इंडिविजुअल. ठीक है, सो आप इंडिविजुअल में आप उसका आगे उसकी कभी कभी डिस्क्रिप्शन भी दिया होता है, तो यू आर नॉट गोइंग टू कंफ्यूज योरसेल्फ. कभी कभी दिया होता है मिस काजल झा, स्टूडेंट ऑफ SNGC, ऐसा दिया होता है. ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन के ऊपर नहीं जाना है, आपको फर्स्ट टर्म देखना है कि वो क्या है. इट इज एन the person is an individual. Okay, now we will talk about an HUF, that is Hindu Undivided Family. ठीक है, और इसको हम लोग जॉइंट स्टॉक फैमिली के भी नाम से जानते हैं. चलो, आपने सुना होगा इस बारे में. HUF के बारे में मुझे कुछ चीजें बताइए आप. चलो, you have already studied this. Yes, sir. May I tell? Yes, sir. हाँ हाँ बोलो अनीश. Hindu and it's a membership that is default by birth. But okay, It's a joint stock family. okay, It's come under a legal structure. okay. हाँ, ये सारी चीजें ट्रू है. और कोई बोलेगा? Leader of the family is the called Karta, and all the Karta. members have the co-partners. Co-partners. वेरी गुड. किसने चैट बॉक्स में भी कुछ रखा हुआ है वो भी देख लेते हैं. हेड ऑफ द फैमिली इज करता. वेरी गुड. एंड फैमिली मेंबर्स आर co-partners. वेरी गुड. ओके, नाउ माय जनरल क्वेश्चन टू यू इज वेदर Muslim can be a part of Hindu undivided family. Means Muslim family can be No, a part sir. of Hindu. क्यों No, ऐसे? sir. अनीश It's बताओ. already बोलो. because it's already indicating Hindu. No, Then not how not, it will not be because possible? of this. Not because of this. It is Hindu undivided. The name indicates it is Hindu, so it is not that. It comes by the operation of Hindu law. This Hindu undivided family is an operation of Hindu law. So this is the reason. There are restrictions on the families that can be a part of Hindu undivided family. Okay, यहाँ पर एक family होती है, a family of Hindu, जहां पर आपके पास एक कॉमन बिजनेस होता है या कॉमन सोर्स ऑफ इनकम होता है. वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम पार्ट ओनली बिकॉज वी आर लर्निंग इनकम टैक्स. सो यू मे हैव लर्न अबाउट द बिजनेस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन इनकम दैट इज बीइंग रिसीव्ड बाय द अनडिवाइडेड फैमिली ऑफ इंडिया. ठीक है, सो अगर वहां पे बंदे हैं जो कि अब तक के अनडिवाइडेड नहीं हुए हैं, उनका जो कॉमन जो इनकम आता होगा उनके एंसेस्टर्स का या उनके बिजनेस से जो आता होगा, that will be taxed under this head. ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें भी है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी है, बहुत सारे टर्म्स में कौन सी कास्ट इसके अंदर आती है, कौन सी कास्ट मतलब नहीं आती है, इसके अंदर कौन सा रिलीजन आएगा, ये इस चीज के ऊपर हमने काफी सारी स्टडी किया. बट इस चीज का कोई लेना देना यहाँ पे है नहीं देखा जाए तो. बट दैट वाज जस्ट अ जनरल क्वेश्चन. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर एग्जांपल कैसे दिया हो सकता है? यहाँ पे दिया हो सकता है कि लाइक मिसेस सीता और
फिर राम, देन लव, कुश, अ फैमिली ऑफ हिंदू दैट इज दे आर कैरिंग बिजनेस। तो इस तरह से एक फैमिली की डिटेल आपको दी होगी, हिंदू फैमिली की आपको एक डिटेल दी होगी, और उस पे आपको दिया होगा कि कॉमन आपका एक सोर्स ऑफ इनकम, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली समझ में आ जाएगा, क्योंकि डिटेल्स जो है वो काफी यहाँ पे दी हुई होती है। सो नाउ टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट इन एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, ये दोनों में कुछ डाउट है? नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। If nothing is coming in, I would treat it as no doubt. Huh? Okay. The third one is a company. ठीक है, अ कंपनी, और कंपनी में दो चीजें आती है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी जो है दोनों आती है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन में जो है वो फॉरेन कंपनी भी कंपनी है, इंडियन कंपनी भी कंपनी है, सारी कंपनीज जो होती है कंपनीज की डेफिनेशन में आती है। ठीक है, सो कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट और फॉरेन कंपनीज एक्ट, वॉटेवर, सारी कंपनीज में आ जाएगी। इसका एडिशनल डेफिनेशन ये भी है कि कोई एक पर्सन, इनमें से कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, फर्म हो सकता है, एओपी, वीओआई, लोकल अथॉरिटी, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि एज अ कंपनी टैक्स पे करता आया हो, तो उसको भी हम लोग कंपनी ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, सो कैसे आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी है? बोलो, कंपनी होने के लिए अगर लिखा हो तो आपके लिए क्या जरूरी होता है? कंपनी को, कंपनी का नाम कैसे लिखा होता है? क्या चीजें जरूरी होती है कंपनी का नाम लिखने के लिए? जल्दी जल्दी बताओ। पीवीटी एलटीडी, पीवीटी ओके, एलटीडी। ओके, पीवीटी, और एलटीडी या फिर एलटीडी, करेक्ट ना? प्राइवेट लिमिटेड या फिर यस सर, लिमिटेड, आप ये बोलना चाह रहे हैं। तो इफ इट इज लिमिटेड, तो ये लिमिटेड कौन सी कंपनी होती है? सिर्फ लिमिटेड लिखा लिमिटेड होता है? बाय शेयर्स, लिमिटेड लिमिटेड बाय शेयर्स, नहीं, पीवीटी लिमिटेड नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ है। तो ये कौन सी पब्लिक कंपनी? कंपनी, ये पब्लिक। पब्लिक कंपनी। खैर, यहाँ पे भी आपको डिफरेंस जानने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता है कि जब भी आपके आगे क्वेश्चन आएगा तो वहां पे लिखा होगा या तो इफ इट इज प्राइवेट कंपनी दैट इज पीवीटी एलटीडी लिखा होगा, या तो फिर एलटीडी लिखा होगा। तो सिंपली आपको समझ में आ जाएगा कि वो कंपनी है। ठीक है, कंपनी के ऊपर आगे और कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज कंपनी आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है क्वेश्चन में भी। द टर्म लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड इज रिटन देयर। ठीक है, पब्लिक कंपनी है तो भी एटलीस्ट लिमिटेड वर्ड वहां पे दिया होगा, और प्राइवेट कंपनी है तो पूरा लिखा होता है। ठीक है, बैंक्स आर आल्सो रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, ये भी याद रखना आपने। ठीक है, एंड रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन। ठीक है, सो जो बैंकिंग जो कंपनीज होती है, बैंक भी जो होते हैं वो भी रजिस्टर्ड होते हैं, किसमें? कंपनीज में ही रजिस्टर होते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ना बैंक के आगे लिखा नहीं होता है लिमिटेड वर्ड और प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको पता होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कौन सी कंपनी होती है। बेटा प्राइवेट लिमिटेड दिया है तो प्राइवेट ही होगी, बराबर ना? इफ नथिंग इज रिटन देन इट इज पब्लिक, इफ प्राइवेट लिमिटेड इज रिटन देन इट इज प्राइवेट। ओके, ओके, अ फर्म, फर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे, पार्टनरशिप फर्म के बारे में। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, यहाँ पे एक्ट आपको पता होने की जरूरत नहीं। सी, यहाँ पर कोई भी चीज आपको इसके अलावा ये कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है बेटा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में ये कंप्लीट डेफिनेशन लिखी हुई है। जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज ऑल एडिशनल। ठीक है, इस पे आपको कुछ लिखना नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल्स आप इसके अंदर लिख सकते हो अगर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है तो भी। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ इट। ठीक है, आप इसको स्पेसिफाई जितना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट डेफिनेशन ये कंप्लीट डेफिनेशन जो आपके सामने दिख रही है, बट वी आर डिस्कसिंग ताकि हम लोग याद कर पाए कि हम लोग कैसे क्वेश्चन में हम लोग इसको आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ठीक है, अ फर्म, फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनर्स होंगे और वहां पे लिखा होता है कि वो पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती सर। बोथ कंपनी हैव रजिस्टर्ड इन बैंकिंग, बोथ रजिस्टर्ड, बेटा क्या बोल रहे हो आप? के दोनों ही कंपनी, मतलब बैंकिंग कंपनी जो होती है वो भी कंपनी होती है, बैंक जो होती है वो भी इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, है ना? अगर आप लोगों ने सेपरेट बैंकिंग रेगुलेशन जो इसको रेगुलेट करता है वो अदर, वो एक अलग पार्ट है उसका, बट जी कंपनी जो है वो बैंक्स भी जो होती है वो कंपनीज में ही रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, जितनी भी बैंक आपको दिखेगी दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 में ही रजिस्टर होगी, या फिर इससे पहले 1956 में रजिस्टर हुआ होगा, या तो उससे पहले किसी और एक्ट में वो रजिस्टर हुए होंगे। ठीक है, तो जो बैंक्स भी जो होते हैं वो भी कंपनीज में ही, मतलब कंपनीज एक्ट में ही रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है,
तो आपको ये चीज ध्यान देना, बैंक भी जो होती है वो कंपनी ही होती है पहले, ठीक है। अदरवाइज वो पब्लिक है, प्राइवेट है, वो सब आप छोड़ दो, वो तो आपके कंपनीज के भी टाइप में होता है, ठीक है। नेशनलाइज है क्या है वो सब से अपन को लेना देना नहीं है, ठीक है। दे आर ऑल कंपनीज, ठीक है। चाहे उसके आगे लिखा हो, जैसे एक्सिस जो है वो उसके आगे लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, तो जो हर जगह पे ऐसा लिखा होगा जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैंक के आगे जरूरी नहीं है कि लिमिटेड वर्ड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड हमेशा यूज नहीं होता, बट दे आर सर फॉर्म का भी अरे हाँ दे रहा हूँ ना, दे रहा हूँ फॉर्म, अभी हम लोग नहीं छूटे नहीं फॉर्म से। फॉर्म में ना दिया होता है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ठीक है। बस फिर क्या, तो ए बी एसोसिएट्स आर पार्टनर्स, अरे तो उसमें आगे तो कुछ फिर क्वेश्चन ही नहीं है। इफ दे आर पार्टनर्स तो वहां पे आप पार्टनरशिप फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सर पार्टनर वर्ड दिया होगा क्या, हाँ पार्टनर या एसोसिएट वर्ड दिया होगा, ठीक है। और मेजरली एसोसिएट दिया भी है तो भी साथ में पार्टनर वर्ड दिया होता है, पार्टनर वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर। तो पार्टनर वर्ड दिया रहेगा तो ही वो पार्टनरशिप फॉर्म होगा या फिर फॉर्म होगा, ठीक है। पार्टनर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फर्म, आपने पढ़ा होगा। कलेक्टिवली पार्टनर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे वर्ड पार्टनर इज इंपॉर्टेंट। अगर ये बोलेगा मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, कैरिंग ऑन सेम बिजनेस, नहीं बेटा नहीं चलेगा, वो फॉर्म में नहीं आएगा। वो पार्टनर्स ही होने चाहिए, तब जाके किस में आएगा, फॉर्म में आएगा। क्योंकि हम लोग के पास और भी कैटेगरी आने वाली है अभी जो कि पार्टनर्स की नहीं होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो होता है ये पार्टनर्स नहीं है, ये कंपनी भी नहीं है, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी नहीं है, ठीक है। ये इन तीनों में से कोई भी ग्रुप नहीं है एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ना ही ये पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर हुआ है, ना ही ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, ना ही ये ऑपरेशन ऑफ लॉ है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप्स हैं, ठीक है। और ग्रुप बनते, जैसे आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम तो सुना होगा, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग आते हैं कुछ बेनिफिट्स के लिए, यहाँ पर सोसाइटी है तो आपका एक सोसाइटी होता है, वो शेयर उसका जो मैटर जो है वो लोग क्या करते हैं उधर पे शेयर करते हैं। और जरूरी नहीं है सोसाइटी, ये जो आपके कोऑपरेटिव्स जो है वो बहुत तरह के होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी है। बहुत जगह पे आपको क्या सीखने को मिलेगा, ये कोऑपरेटिव्स के बारे में सीखने को मिलेगा। तो कोऑपरेटिव्स जो होते हैं वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते हैं, ठीक है। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है। अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि नहीं, आप नहीं बताएंगे, मैं आपको पहले बताऊंगा फिर आप मुझे जो है वो इसके बाद में बताएंगे, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है, पर्सन का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, कंपनी हो सकता है, फर्म हो सकता है। जब आप पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा मतलब या तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म सब मिलके क्या करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर सारे के सारे इंडिविजुअल हैं तो उसको आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलेंगे। एक इंडिविजुअल है, एक कंपनी है या एक फर्म है, ऐसा कुछ, एक एचयूएफ है, ठीक है, ऐसे कुछ मिलकर अगर कर रहे हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलेंगे, ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में एक चीज पूछी जाती है, कोऑपरेटिव के बारे में दिया होता है, तो आप याद रखना एसोसिएशन ऑफ पर्सन में वो आता है। इसके अलावा जब भी आप कंफ्यूज होंगे क्वेश्चन में कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, तो आप हमेशा वहां पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही मार्क करेंगे, ठीक है। वन मोर थिंग, इसका एग्जाम्पल दीजिए सर, तो अब इसका एग्जाम्पल देते हैं। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ठीक है, डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज फॉर सम कंपनी, ठीक है। अब ये कोई पार्टनर नहीं है क्योंकि इन्होंने पार्टनर्स की तरह रजिस्टर नहीं किया, ठीक है। या फिर ऐसे बोलेंगे कि तीन लोग मिलकर सीजनल होता ना, अभी जैसे मैंगो का सीजन था तो मैंगो के सीजन में उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल सेल मैंगोस, ठीक है। अभी रेनी सीजन है तो दे डिसाइडेड टू सेल अम्ब्रेला और रेनकोट्स, ठीक है। तो ये एक टेम्पररी जो होता है ये पार्टनरशिप की तरह होता है, बट द वर्ड पार्टनर्स यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होगा, ठीक है। देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, सारे इंडिविजुअल रहेंगे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, कंस्ट्रक्टिंग सिनेमा हॉल। तो यहाँ पर जो ये इनका एसोसिएशन है इसका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैसे होगा, मिस्टर ए लिमिटेड, ठीक है, एंड
Messrs A and B Associates, a partnership firm, ठीक है, they decided to sponsor, ठीक है, a cricket team, ठीक है, and from there they got the income. तो अगर ऐसा कुछ अगर आता है, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आ जाएगा. एसोसिएशन ऑफ पर्सन में जरूरी नहीं होता है कि वहां पे पूरे इंडिविजुअल हो, वहां पे इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, फर्म भी हो सकता है, कंपनी हो सकता है. They come together and they decide to do something, they decide to do some businesses, and from there they get some income, and this is not registered company, this is not registered firm, ठीक है. उनकी खुद की अलग एक पर्सनालिटी होती है और वो आके क्या करते हैं, यहाँ पे एक बिजनेस करते हैं, ठीक है, और वो एज अ फर्म भी रजिस्टर नहीं करते अपने आप को. टेम्पररी जो होता है रिलेशनशिप होता है उनके बीच में, ठीक है, और टेम्पररी हो या लॉन्ग टर्म हो, लेकिन ये पार्टनरशिप तो नहीं होता, ठीक है. एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन का एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ज्यादातर जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि सारे इंडिविजुअल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. एसोसिएशन ऑफ पर्सन में एक इंडिविजुअल, एक कंपनी, एक एचयूएफ ऐसा हो सकता है, ठीक है. तो आप पढ़ किसके बारे में रहे हैं, ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है. जब ग्रुप्स मिलकर काम करते हैं, तो ग्रुप्स मतलब सारे के सारे इंडिविजुअल होंगे तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. अगर इन एन एग्जांपल अगर वो एक कंपनी, एक इंडिविजुअल, एक फर्म अगर ऐसे हो रहे हैं, या एक एचयूएफ सब मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन. आई होप आपको इस पर्टिकुलर पार्ट में और बाकी के मतलब फर्म में और कंपनी में डिफरेंस समझ में आएगा. कंपनी तो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एंटिटी है, बट आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन को और फर्म को कंफ्यूज कर सकते हैं. फर्म में हमेशा लिखा होता है कि पार्टनर है, ठीक है. Okay. A local authority is nothing but the authority, the local bodies having authority or legal rights. उनको local decision लेने का क्या होता है, right होता है. तो हमारे यहाँ पे local decision कौन लेता है, बीएमसी लेती है ना. तो म्यूनिसिपैलिटी जो है उसका डिसीजन लेती है, ठीक है. गांव वगैरह में पंचायत होते हैं. तो इस तरह से ये सारी चीजें किस में आती है, लोकल अथॉरिटी में आती है. तो लोकल अथॉरिटी मतलब जिनको लीगल राइट, इसके बार काउंसिल्स भी होते हैं, ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट है. तो ये सब चीजें किस में आती है, आपकी लोकल अथॉरिटी में आती है, ठीक है. तो आई होप आपको लोकल अथॉरिटी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. लोकल अथॉरिटी के एग्जांपल्स भी बहुत कम है, वो आपको समझ में आ जाते हैं. एवरी आर्टिफिशियल एंड जुरिडिकल पर्सन हु इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कैटेगरी. तो इसके अंदर आपकी मुंबई यूनिवर्सिटी का एग्जांपल आ जाएगा, ठीक है. एलआईसी इसके अंदर एग्जांपल आता है, एलआईसी का भी, ठीक है. एक एक बात मुझे आप बताइए, मैंने एक चीज तो पूछा नहीं है कि एक कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या था, कोई मंडल आ जाता है. मंडल मालूम है ना, मतलब बनाते हैं कोई तो भी XYZ मंडल, या फिर ग्रुप्स. मंडल का मतलब ग्रुप्स होता है. किसकी कैटेगरी में जाएगा इनमें से, Body of individual. Association of persons, sir. Body of एसोसिएशन ऑफ पर्सन individuals. या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है. जरूरी नहीं है कि Body of मंडल. individuals. हाँ बेटा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में जाएगा, नहीं तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में जाएगा. डिपेंड करता है कि उसके अंदर सारे इंडिविजुअल्स हैं, तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में जाएगा. और अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ और कंपनी अगर मिलकर अगर कोई मंडल बनाते हैं, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में जाएगा. बट यू आर राइट कि वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में रहेगा, करेक्ट है, आप रॉन्ग नहीं, ठीक है. अब मुझे अभी मैंने आपके लिए रखा नहीं है इसके ऊपर क्वेश्चन. तो आपको इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप थोड़े बहुत क्वेश्चन लिखोगे. अगर एंड में मैंने आपको दिया तो आपका इंटरेस्ट पूरा चला जाएगा. तो मेरे पास बुक कहाँ गई, इसके ऊपर क्वेश्चंस करना है क्या, यस और नो, या फिर आगे बढ़े. Yes, sir. Yes sir, हाँ, करना क्वेश्चन है. क्वेश्चन करना है एक्चुअली वही है. अदरवाइज लास्ट में अगर आप करेंगे तो भूल ही जाएंगे, थोड़ा अभी याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है. तो आज इस पे वाइंड अप कर सकते हैं हम लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, खाली ये बराबर से चले और कुछ नहीं. बहुत घूम रहा है, बहुत घूम रहा है. वेरी गुड. डायरेक्ट टैक्स एमकॉम है तो डायरेक्ट टैक्स 2, डायरेक्ट टैक्स 2 SY सेमेस्टर 3.
डायरेक्ट टेक्स्ट टूल क्यों लिखा है फिर इसमें? यही है। डेफिनेशंस में है। सो ये मैंने ऑलरेडी आपको फॉरवर्ड किया है। हाँ, जो मैंने फॉरवर्ड किया उसमें भी होगा बेटा, ये तो मैं भूल ही गया। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी फॉरवर्ड किया हुआ है नोट्स ना। रिलेटिव असेसमेंट कहाँ था पर्सन भाई? ओके, दिस इज द इलस्ट्रेशन। अरे लेकिन आगे ही आंसर दिया हुआ। अच्छे, मजा कैसा आएगा? ओके, ये ठीक है। थोड़ा सा इसको चलो, हाँ, ताकि आपको आंसर्स ना देखने मिले। चलो, सबसे पहले बताओ, डिटरमिन द लीगल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, चैताली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी किस में आएगा? कंपनी सर। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ ऑफ पर्सन। पर्सन में आता है। ठीक है, एंड आई डोंट नो यहाँ पे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड का क्या संबंध है, बट कोऑपरेटिव जो होती है वो कंपनीज नहीं होती। अगर आपने पढ़ा होगा तो कोऑपरेटिव जो है वो कंपनी नहीं है, कोऑपरेटिव अलग से पढ़ा होगा। कोऑपरेटिव का एक्ट होता है, दैट इज आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आता है। ठीक है, मिस्टर जना किनंदन एन एम्प्लॉय। Individual. इंडिविजुअल है। अरे सही, एकदम सही, एकदम करेक्ट करेक्ट है। उसके बाद है मुकुंद आयरन्स लिमिटेड। चलो, कंपनी सर। कंपनी। कंपनी सर। एकदम एकदम, मतलब तुमने एकदम सुपर फास्ट हो गया, एकदम पहले ही समझ गए सब। अच्छा, मुझे ना अनीश का वॉइस जो है ना बफर बहुत हो रहा है। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना? यस सर। हाँ, सो देयर इज ऑलवेज डाउट कि मेरा वो नेटवर्क खराब है कि उसका नेटवर्क खराब है। ओके, अनीश का मिस्टर, नेटवर्क खराब ही रहता है। हाँ, नो प्रॉब्लम। सिस्टम के साथ जब भी हम लोग डील करते हैं तो दैट इज ओके, बट जस्ट टू मेक श्योर कि अगर मेरा नेटवर्क खराब होगा तो मैं कुछ भी बोलूंगा तो आपको समझेगा नहीं। ठीक है, और आप लोग बोलते हो तो मुझे एटलीस्ट बफर होता है तो भी वो समझ में आ जाता है कि क्या बोल रहे हो। ओके, मिस्टर बद्री प्रसाद, आप प्रोप्राइटर बोलो। इंडिविजुअल सर। इंडिविजुअल है, मैंने आपको बोला था डिस्क्रिप्शन दिए होते हैं आगे। ठीक है, सो करेक्ट है बीबी हासरा। Okay. Now comes Union Bank of Allahabad. कंपनी Company. Very good. कंपनी सर। चलो. XYZ and company and unregistered firm. Firm. हाँ, firm है। फॉर्म सर। फर्म के केस में वहां पे दिया होता है कि वो फर्म है, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो। आप लोगों ने फर्म के केस में पढ़ा होगा कि फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड, ऐसा करके पढ़ा होगा। ठीक है, महाराष्ट्र और हर एक स्टेट के लिए जो है वो अलग अलग रूल है फर्म का, तो अपन उसके अंदर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बट इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन जब पूछा था तो भी बहुत आर्ग्यूमेंट था कि रजिस्टर्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अपन को उससे लेना देना नहीं है। रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, फर्म फर्म होता है। ठीक है, a joint family of Mr. Rajesh, his wife and HUF, HUF। सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हाँ, बराबर है, सब करेक्ट हो तुम लोग। अब आती है एकदम डिफिकल्ट वाली चीज, श्रमिक सेना। ये सेना है, अरे क्या बात है। जुडिशियल पर्सन, बॉडी ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। हाँ, सेना मीन्स व्हाट? इट इज अ ग्रुप। ठीक है, एंड ग्रुप कैन बी एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। So whenever you are confused, so you should write both, huh? Association of person / body of individual. There is no harm. आप पूरा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये भी इजी है, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, MMC, Local authority. लोकल अथॉरिटी, समझा क्या? MMC Yes, sir. म्युनिसिपैलिटी जो है वो आपका Yes. किस में आता है? लोकल अथॉरिटी में आता है। अच्छा, ये दोनों लोकल अथॉरिटी, ये दोनों लोकल एक ही है। अथॉरिटी। ये दोनों लास्ट के एक ही है, मुंबई यूनिवर्सिटी एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसमें आता है। बोलो, अरे भूल गया। सर जो आपने भेजा था उसके लास्ट वाले क्वेश्चन में हाँ, वो अदर, नाम नहीं आ रहा है। अदर्स, आर्टिफिशियल पर्सन। हाँ, अदर आर्टिफिशियल judicial में- जुरिडिकल पर्सन। जुडिशियल नहीं है बेटा, वो ज्यूरिडिकल है। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे वो जुडिशियल नहीं लिखा हुआ है। मुझे भी कई साल गए इसको प्रोनाउंस करने में, आप इतना टाइम नहीं लेना। ठीक है, इट इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ओके, मैं इसको थोड़ा सा ड्राइंग को हटाऊं क्योंकि किसी की आ गई ये गलती से। देखो अपना आंसर जो है आपका करेक्ट है कि नहीं। ये लास्ट वाला कंपनी कौन सा है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी था क्या? नहीं, LIC यस इसमें सर, आता है। LIC तो कंपनी होगा ना सर। लाइफ इज द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यस सर, LIC अरे तो कंपनी मैं होगा। थोड़ी ना बोल रहा हूँ, LIC इधर पे है या डेफिनेशन में, तो हम नहीं बोल रहे हैं बेटा, इधर पे लिखा हुआ है इसलिए मैंने पढ़ाया आपको। कहाँ है बालाजी? ये तो खैर। अच्छा, ये लास्ट वाला जो पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। आर्टिफिशियल जुरिडिकल मींस एंड इंक्लूड्स all artificial person with a juridic personality. This will include idols of gods and goddess. ठीक है, तो यहाँ पर जो ऐसे बोलते हैं कि हम इंसान नहीं हैं, हम भगवान हैं, तो ऐसी, या फिर गॉड एंड गॉडेस, ठीक है, ऐसे लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन बोलते हैं। और ऑब्वियसली ऐसी कोई चीज, जो ऐसी कोई कॉर्पोरेशन जो कि सेपरेट स्पेशल एक्ट से बनी हो। ठीक है, तो ये भी किस में आती है? इसी के अंदर आ जाती है। ओके, सो नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन, क्योंकि LIC का भी खुद के लिए है, बट वो मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसको कंफर्म करके आपको बताऊं। ये पूरा रीड कर लेते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? आप सच एज अल्लाह, बालाजी, विश्वनाथ एटसेट्रा एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है, जो भी कॉर्पोरेशन अंडर स्पेशल एक्ट होगी। दिस इज रेसिजुअरी। रेसिजुअरी का मतलब क्या होता है? जो कहीं पे फॉल नहीं होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, तो उसको रेसिजुअल बोलते हैं या रेसिजुअरी क्लासिफिकेशन बोलते हैं। एंड देयरफॉर इट विल कवर ओनली दोज हु डिड नॉट फॉल विद इन एनी ऑफ द preceding classification. Explanation to the above section clarifies that association of person, body of individual, local authority, artificial juridical person shall be deemed to a person whether or not it was formed, established or incorporated with the object of deriving incomes, profit or gains. जरूरी नहीं है कि आपने इनकम अर्न करने के लिए किया हो या ना किया हो। ठीक है, बट ये लोग क्या होंगे? पर्सन की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो, थोड़ी देर स्क्रीन पर है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और यहाँ पर किसी चीज में कुछ डाउट है तो आप वो भी पूछ लो, देख लो एक बार, क्योंकि इसका आंसर दिया हुआ है तो अपन क्वेश्चन आंसर राउंड यहाँ पर नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, तब तक कि मैं आपके लिए सर्च करता हूँ। किसी चीज में बेटा डाउट है तो पूछ लो आप इधर पे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस है, आंसर्स भी वहीं पर है। हम लोग ने प्रैक्टिस के लिए जो लिया था उसमें आंसर्स नहीं थे। सर ये 6 वाला कौन सा 6 वाला क्या है? आकृति एसोसिएट सर प्राइवेट उसमें, लिमिटेड है ना? सर तो एसोसिएट भी है और प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं, है। आपको मैंने बोला है कि अगर एसोसिएट्स दिया होगा तो भी आगे दिया होगा पार्टनर है। देखो इधर होगा ना, पार्टनर का एग्जांपल किधर है, फर्म का एग्जांपल किधर है? इधर देखो दिया होता है, मिसेस वैभव एंड एसोसिएट्स अ पार्टनरशिप ऑफ 2 कॉमर्शियल आर्टिस्ट, दिया है। देखो द वर्ड पार्टनरशिप इज इंपॉर्टेंट। ये यस सर। हाँ, for anything to be a firm there is a the relationship should be partnership.
मैं यहाँ देख रहा हूँ इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 और एनी अदर लॉ फॉर्म. इट इज एन एंटिटी व्हिच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन टू शेयर प्रॉफिट. यार एलआईसी के लिए तो कुछ और ही दिया हुआ है यहाँ पर, तो मे बी ये बुक में इन्होंने रॉन्ग किया है. हम्म. ठीक है, कोई बात नहीं. इसको कंफर्म करते हैं और फिर उसको बताते हैं कि उसका कुछ चेंजेस है. एक्चुअली एलआईसी इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज है, तो इस हिसाब से वो कंपनीज में ही आना चाहिए. ठीक है, बट दे हैव मेड सर्टेन चेंजेस. ओके, anything else? Any question is there? We have 1.5 minutes. I hope आप लोगों ने मतलब आज कौन अटेंडेंस लेने वाला है? बोलो कौन अटेंडेंस लेगा? शायदा बोली मैं. पहले शायदा ने बोला, तो शायदा आप अटेंडेंस ले लो. चलो. अटेंडेंस लेना है और फिर मुझे भेजना है. ठीक है, 1 मिनट ही रिमेनिंग है. जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो. मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ.